Good afternoon, class. In a minute, I'll share the screen and then start with the session. Am I audible to you people, and is the screen visible? Just tell me these two things. Class, am I audible and is the screen visible? Yes, ma'am, you are audible. Okay, great. So we'll start with today's session then. In the previous lecture, we started with industry analysis as a concept. As I had previously informed, that in this unit we'll be studying all the different techniques which are used for industry analysis. Now, these techniques are such that it can be used by the company as well as an investor to take decisions. The first one which we studied was pest analysis. After that, we started with Mitchell Potter's or Michael Potter's five force model. Now, in this five force model, there are five components which determines industry's competitiveness or industry's strength and weakness, or what are the situations, what is how are different forces determining its competitiveness. Among those, we were done with three. Now, which three were we done with? Tell me. कौन से तीन कर लिए थे हमने? Write in the chat box, tell me which three were done in the yesterday's session. I'm checking the chat box, tell me. Why is no one responding? Okay, for now, since I'm asking you, I'll let go. But अगर इसके बाद मुझे reply नहीं मिला, तो it will be a problem, class. Starting में हमने in the previous lecture we were done with three forces. The three forces were competitive rivalry, threat of new entry, and suppliers' power. These three were already discussed. Now we will be starting with buyer's power and threat of substitution. Now, the first we'll discuss is buyer's power. Buyers over here are no one but customers. In an industry, the sales of the company, the turnover of the company is again plays a very important role in determining the profitability of the company. अब कस्टमर्स का सेल कितना हो रहा है उस हिसाब से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी डिस्क्राइब होगी, उस हिसाब से उसका मार्केट ग्रोथ हम स्टडी कर सकते हैं. Now, these customers will have power with them. What kind of power and what are we talking about over here? Now, these buyers, when they are trading or working as a part of the working as a part of the environment over here, when I say in the environment, they play certain role. What role over here they play is that वो determine कर सकते हैं कि आपका
कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कितना होगा और किस हिसाब से होगा, जैसे कि उनका नंबर कितना है, क्या वो इजीली स्विच कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट को, whatever the business is that easily replaceable. These head points over here are listed. Now, what are those head points? Similar to kind of suppliers, number of customers, size of each order, then difference between competitors, price sensitivity, ability to substitute, and cost of change. See, when I'm talking about industry, there are multiple companies which will be a form of the or part of that industry. अगर उनके बीच में rivalry है, as a customer, what happens is the switching or the substitution of the product is easily possible. तो क्या आपका product easily substitute हो सकता है? If it can be easily substituted by the customers, the risk in your product is high. आपका जो growth stability है, that is very less because your product is easily substitutable. Tomorrow, a slight inconvenience or change will lead to loss in the production. Customers power or buyers power means that over here the customers have strength and power to bring a change in the company's profitability or to influence company's profitability. Now say the number of buyers. If the number of buyers are less, suppose if the firm which we are talking about works in B2B business, or it is a company where the buyers are very limited, it is not a consumable good where every or not a basic necessity good, rather than the industry which you are talking about has a limited buyer, फिर वो ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स वाली इंडस्ट्रीज हो सकती हैं जिसमें कि रेगुलर कस्टमर्स विल नॉट स्पेसिफिकली गो एंड बाय योर spare parts. It will be B2B business. In those business, when the customers are very few, they have a power to influence. They have a power to influence. उनको क्या मिलता है? तो they have a leverage in negotiations. What kind of negotiations can it be? Any favorable terms and conditions, they can twist it in their demand. जिस हिसाब से उनका डिमांड है उस हिसाब से उनको क्या कर सकते हैं, वो ट्विस्ट कर सकते हैं इन नेगोशिएशंस बिकॉज ऑफ द पावर विच दे होल्ड, एंड दैट पावर इज बीइंग फ्यूअर इन नंबर्स. साइज स्मॉल है, अगर सपोज बहुत बड़ा कस्टमर बेस है तो उसमें से कुछ कम भी हो गए तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर कस्टमर बेस पहले से छोटा ही है तो उसमें से अगर कस्टमर्स आपके डिसलॉयल हो रहे हैं, आपका प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करेंगे, तो इट विल बी a risky situation for the industry. Next, purchase size or size of the order. Just like understand this, जैसे आपने ज़्यादा bulk, a customer gets this power of demanding cheaper price when they are ordering in bulk. जब आप ऐसा समझो, you buying a product from a single retail shop or you buying a product from DMart or Walmart, so the difference in the price is because of the bulk or the size order. आप जैसे इफ यू आर डिमांडिंग और परचेजिंग इन लार्ज क्वांटिटी, आपका जो परचेजिंग पावर या कंज्यूमर पावर होता है वो इंक्रीज हो जाता है. तो आपके बिजनेस के कौन से टाइप के कंज्यूमर्स है वो डिटरमाइन करेंगे कि आपके कंज्यूमर्स के पास पावर है या नहीं है. Price sensitivity. What is price sensitivity? What is price sensitivity? Understand this. The customers over here can be very price sensitive. Now what does that means? There are different range of customers when I talk about in a particular industry. अगर मैंने suppose clothing brand की ही बात की, in clothing brand there are large number of brands which are there. There are certain first copy brands, then there comes roadside shopping. So every customer is price sensitive towards product. Those specifically going for the customers who have a brand loyalty. अगर सपोज कस्टमर्स को ब्रांड लॉयल्टी है तो वहां पे प्राइस सेंसिटिविटी क्या होगी, कम होगी.
The customer will buy your product irrespective of the certain changes of the price. जैसे suppose कोई पर्टिकुलर क्लोथ ब्रांड ने अगर जीन्स, इफ से जीन्स की बात कर रहे हैं हम, आपके जो वेरेबल्स होते हैं उसमें उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, बट if a consumer is loyal to that brand irrespective of the fact that the price has increased, they'll still गो एंड परचेज द सेम प्रोडक्ट. ये कंपनी के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उन्होंने प्राइस इंक्रीज की बट उनके जो कस्टमर्स थे वो प्राइस सेंसिटिव नहीं थे. whereas there are customers who are very price sensitive, so over there what happens is even a slight change in price of your product will lead to the customer to switch the product. This one usually happens when the customers have close substitutes of the product. अगर कस्टमर्स के पास आपके प्रोडक्ट का काफ़ी क्लोज सब्सटीट्यूट है तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी प्राइस सेंसिटिविटी की वजह से दे कैन स्विच बैक टू डिफरेंट, they can switch to different products or different companies. So price sensitivity is an important issue when you talk about customers. Next comes ability to substitute and cost of changing. Again the same thing, many a times these customers might believe that they are loyal, and the satisfaction level, the cost of changing में एक तो cost of changing can be satisfaction level, the another cost of changing can be कि purchase जो आपका हो रहा है उसमें cost, the price of the product or the business may be another cost of changing. अगर आप online अगर आप कस्टमर्स को ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं तो वहां पे जो आपका कस्टमर बेस है वो ज्यादा होता है, तो आपके पास जो रीच होती है वो ज्यादा होगी, वहां पे आपका कस्टमर में movement will not hinder your company's growth to that extent. But अगर उसका क्लोज सब्सटीट्यूट है, जैसे अभी मैंने बात की ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर्स, क्योंकि मैं करा रही थी तो लेट्स गो टू द सेम एग्जांपल. ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर्स लाइक अमेजोन और यू हैव फ्लिपकार्ट और यू हैव मिंत्रा, तो इन सब चीज़ों में जो बायर्स कंपटीशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो काम करते हैं इनका मेजर सोर्स होता है उनका कस्टमर्स. फॉरगेट अबाउट दैट, स्ट्रीमिंग चैनल्स जो आपके स्ट्रीमिंग बिजनेस होते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स का स्ट्रीमिंग हो गया, डिज्नी का स्ट्रीमिंग हो गया, देन आपका हॉटस्टार हो गया, देन देयर इज रीजनल लेवल पे कलर्स है, वो आपका वूट का जो कलर्स का वूट का चैनल था, Z5 चैनल है, ये सब क्या है, सारे स्ट्रीमिंग चैनल्स हैं. इन सब स्ट्रीमिंग चैनल्स का एक इंडस्ट्री है. अब इसमें जो कंज्यूमर्स है उनके पास पावर है टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स और द कंपनीज. उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंज्यूमर एंगेजमेंट पे ही डिपेंड करती है, तो वहाँ पे जो कंज्यूमर्स है उनका जो पावर वो है वो बहुत हाई है. वेरेस जो नॉर्मल कंज्यूमर्स हो गए, जैसे कि प्रोडक्ट्स विच इन विच not much bargaining is possible, not much substitution is possible, उन प्रोडक्ट्स में कंज्यूमर पावर या बायर पावर क्या होगी, कम होगी. In this way, the power which the consumer holds in will be able to make a difference in the profitability and the growth of the company. This growth of the company will then thus lead into the change in the prices of the company or business valuation. जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो बिजनेस वैल्यूएशन, बिजनेस की ग्रोथ इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. अगर आपको लग रहा है कल को उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ग्रोथ है ही नहीं, तो एज एन इन्वेस्टर इट विल बी वेरी रॉन्ग टू डिसाइड टू गेट invest in those industries and for studying whether it has growth or not. आप इन 5 forces में से इन forces को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. The next is, or the last force is threat of substitution. Now जब हम कस्टमर्स पावर डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे भी पॉइंट था एबिलिटी टू सब्सटीट्यूट. नाउ एक
कंटिन्यूइंग विद द सेम एग्जांपल विच आई टुक, मैंने अभी आपको स्ट्रीमिंग चैनल्स के एग्जांपल लिए थे, तो अमेजोन, नेटफ्लिक्स, इन लोग में बहुत ज़्यादा क्या है, टफ कंपटीशन है. टफ कंपटीशन रिगार्डिंग व्हाट एस्पेक्ट, regarding substitution. Anytime they feel कि the other one can overtake their customer base, उनका जो customer base है वो उसको क्या कर सकता है, overtake कर सकता है. For this what they do is they always have a constant threat of substitution. Also it is a high case of competitive rivalry. competitive rivalry भी है, threat of substitution भी है. तो इस केस में दो चीज ध्यान रखेंगे. अब जो इन्वेस्टर्स है, सॉरी जो आपकी कंपनीज है, जो इंडस्ट्रीज है, व्हाट दे विल डू इज, इफ देयर इज अ हाई थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द वन ऑफ द की सॉल्यूशन. आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे से क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, यूनिक करने की कोशिश करोगे, टू एंश्योर दैट दिस द threat decreases, to ensure that the threat of substitution decreases because of the unique features or unique facilities or unique product which the company or the industry can provide to the customer. The head points of threat of substitutions are uh, substitute performance and cost of change. What do you mean by substitute performance? What do you mean by substitute performance, class? सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस मीन्स नथिंग, बट आपका जो सब्स्टिट्यूट है उसका वर्किंग, उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस टू ओवरटेक, कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस में वो आपको क्या कर सकता है, वो आपकी प्रॉफिट को डिटरमाइन या डिक्रीज कर सकता है. दैट इज सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस. तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज हाई व्हेन योर सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री और सब्स्टिट्यूट फर्म इज परफॉर्मिंग एज ग्रेट एज यू. वहाँ पे थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, हाई होगा. With this, we are done with all the 5 forces of Michael Porter's 5-force model. After determining or studying these 4 forces, what happens is the industry can take a decision on what are the next strategic step to increase the profit. उनके next step और approach क्या होंगे वो determine करने के लिए this 5-force model analysis is required. We'll take a case study now. What kind of case study? Let's say मैं ऐसे तो already example बता रही थी, but there is another example which we can go through to understand that how 5-force Porter analysis can be done. Understand this. मैंने जैसे Netflix का example लिया था, तो उसको ही continue करते. अब Netflix में अगर मैंने बोली competitive rivalry, तो Netflix की competitive rivalry is very high because Disney है, Amazon Prime Video है, local players है जैसे आपके Z5 हो गए, या फिर HBO Max इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रीमिंग चैनल्स है जो उसको क्या दे सकते हैं, टफ कॉम्पिटिटिव राइवलरी दे सकते हैं. तो व्हाट डज नेटफ्लिक्स डू, नेटफ्लिक्स इस कॉम्पिटिटिव राइवलरी को कैसे ओवरटेक करता है, वो खुद के ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट कर रहा है. बिकॉज ऑफ दिस उसका जो लाइसेंसिंग है कि बाकी कंट्रीज इसका लाइसेंसिंग, बाकी जो स्ट्रीमिंग चैनल्स है उसका लाइसेंसिंग लेके उस चीज़ों को नहीं दिखा सकती. अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ नेटफ्लिक्स क्रिएटिंग एन इट्स ओन शो इज द सेक्रेड गेम्स. सेक्रेड गेम्स उसका खुद का एक ओरिजिनल सीरीज है, एंड इस तरीके से अच्छे कंटेंट को ऑफर करके, अच्छे प्रोडक्ट्स को ऑफर करके नेटफ्लिक्स क्या करती है, अपनी कॉम्पिटिटिव राइवलरी में ऊपर आने की कोशिश करती है. नेक्स्ट, let's say threat of new entrants. Now there is a high threat of new entrants because of the revenue which it generates. इसका जो revenue generation है वो high है, but threat
एंट्रीज तो पॉसिबल है. व्हाट इज वन ऑफ द थ्रेट कि द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट. नाउ व्हेन आई से ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, यहाँ पे आप ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो. आपका जो लाइसेंसिंग का कॉस्ट होता है, आप जितने भी कंटेंट्स को शोकेस करोगे उन सबको एक्वायर करना होता है. तो इस तरीके से देर आर सर्टन थ्रेट्स. उसमें से कुछ जो प्रॉब्लम्स होंगे वो यही होंगे जो मैंने अभी बताए. जैसे कि पहला लाइसेंसिंग का कॉस्ट हो सकता है. सेकेंड इट कैन बी सप्लायर्स में मैंने बात की तो द कंटेंट क्रिएटर्स, द स्टूडियोज एंड प्रोडक्शन हाउसेस, दोज आर द सप्लायर्स. What bargaining power they have, what kind of high, low, or medium. So the bargaining power which they have can be medium to high, because sometimes what happens is the content is unique, and what will Netflix do? So Netflix wants to acquire that content over here. अब क्योंकि वो content उस particular studio owned है, उस particular film studio owned है, तो they can demand the price according to their सेटिस्फैक्शन. उन लोग जो प्राइस डिमांड करेंगे वो उनके सेटिस्फैक्शन से होगा. इस तरीके से सप्लायर्स क्या करते हैं, पावर होल्ड करते हैं. नेटफ्लिक्स के केस में उसके सप्लायर्स कौन है? तो नेटफ्लिक्स के केस में उसके सप्लायर्स है जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिल्म स्टूडियोज होती हैं, जो और उसके राइट्स को होल्ड करती है. उन राइट्स को परचेस करने का काम किसका है? नेटफ्लिक्स एज अ कंपनी है. तो इस तरीके से द सप्लायर्स डू होल्ड अ पावर. Similarly, when I say buyers power or customers power, जो customers होते हैं, they can determine the successfulness or the growth of the कंपनी. कि उसका जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितने ज्यादा कस्टमर्स एंगेज हो रहे हैं. कस्टमर्स एंगेजमेंट में, बायर्स के एंगेजमेंट में. यहाँ पे बायर्स कौन से केस में होते हैं? कोई ऐप खरीदता है? नहीं. इट इज अबाउट सब्सक्राइबर्स. जितने लोग नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उतना वो पैसा पे करते हैं. या यू माइट नो द चार्जेस विच आर देयर फॉर द चार्जेस विच आर देयर फॉर टेकिंग नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन. वो उसका क्या होगा? बायर्स पावर का पार्ट बनेगा. तो इस तरीके से मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से फॉर्म प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लिया विच वाज नेटफ्लिक्स. उसने क्या करना है? तो अपना थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंस, ये सब चीज़ों को स्टडी करके व्हाट इज द यूज. आफ्टर स्टडिंग ऑल दिस दे विल डिटरमाइन अ प्रॉपर प्लान ऑफ स्ट्रक्चर in which they are able to increase their companies or the industry's profit. With this, we are done with Michael Porter's 5 force model. Tell me if you people understood what that is. Class, tell me, is the Michael Porter's 5 force model clear? If you people don't react, what is the use then? How many of you are listening react at least in certain way? Out of 2023, I hope I can get at least 4 to 5 reactions. Okay. So assuming all of you are listening, I now say that all the parts or the 5 forces model of Mitchell's Porter is done. With this, we can start with the new technique of industry analysis. For doing that, there is another method or way which is known as BCG matrix. I'll stop sharing this PDF photo, and I'll share a new one. Just give me a minute.
Okay. Tell me, is the screen visible to the students? Okay. So the screen is visible. Now we will start with the third topic of the module 4, which is BCG metrics. Now, what is the full form of BCG? BCG is known as Boston Consulting Group. Again, BCG metrics. BCG is Boston Consulting Group. As the name, by reading the name, you should understand that it is a firm. BCG is a firm, and this matrix, which is known as a 2 by 2 matrix, is given by them, and hence the name comes BCG matrix, Boston Consulting Group. See, this BCG matrix was created by the Bruce Henderson. Now, Bruce Henderson was the then founder of BCG company in 1970. 1970 में Bruce Henderson, the founder of BCG company, created the BCG matrix. What is this? The use of this BCG matrix? So, in this BCG matrix, they were trying to study different प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी और द इंडस्ट्री. एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स और उसके स्टेजेस को सीखने के लिए उन्होंने क्या क्रिएट किया था? एक बीसीजी मैट्रिक्स क्रिएट किया था. Now, as you can see in the image, this BCG matrix is a kind of a graph thing. जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? तो दो चीजें दिखा रहे. What are the two things? On the x-axis and y-axis. X-axis is the horizontal. जो sleeping में जो x होता है उसको बोलते हैं हम x-axis, और जो vertical है standing वाला उसको बोलते हैं y-axis. तो x-axis और y-axis का combination क्रिएट करके एक 2 by 2 की क्या क्रिएट किए हुए मैट्रिक्स क्रिएट किया है. 2 by 2 मतलब 2 rows and 2 columns. नाउ इन दिस मैट्रिक्स जो आपका एक्स एक्सिस होता है वो कोई पर्टिकुलर चीज को डिनोट करता है. कौन सी चीज को डिनोट करता है? इन आवर केस मार्केट शेयर. एंड जो वाई एक्सिस है उसको इसको डिनोट करता है मार्केट ग्रोथ. So your x-axis in BCG matrix denotes market share and your y-axis denotes market growth. अब सबसे पहले आगे कुछ भी पढ़ने से पहले हम इन दो टर्मिनोलॉजीज को क्लियर करेंगे. What is market share and what is market growth? Now market share means that the current consumer base of a particular इंडस्ट्री और प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का करंट कितना मार्केट शेयर है या मार्केट में वो कितना ज्यादा वॉल्यूम पे ट्रेड हो रहा है. अगर मैं ट्रेडेड की बात कर रही हूँ, अगर मैं ट्रेड नहीं होने की बात कर रही हूँ नॉर्मली, तो मार्केट शेयर मतलब कितना ज्यादा उसके कस्टमर्स है, कितना उसकी और प्रोडक्ट की कितनी सेल्स और परचेज हो रही है, वो प्रोडक्ट कितना मार्केट को ऑडियंस को कैप्चर कर रहा है, वो क्या होगा? उसका मार्केट शेयर दिखाता है. मार्केट ग्रोथ इज नथिंग बट स्कोप ऑफ फ्यूचर ग्रोथ. मार्केट शेयर इज लाइक करंट और मार्केट ग्रोथ क्या है? स्कोप ऑफ फ्यूचर ग्रोथ. फ्यूचर में उस पर्टिकुलर चीज का कितना ग्रोथ हो सकता है, वो कितना अट्रैक्टिवनेस, द अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हाउ मच आर इन्वेस्टर्स और क्रिएटर्स आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग, वो उसका क्या दिखाता है? मार्केट ग्रोथ. मार्केट ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी कहाँ है? वाई एक्सिस पे. और करंट मार्केट शेयर है, मार्केट में कितना उसका करंट वैल्यू है, वो कैसे दिखेगा? मार्केट शेयर में. तो देयर आर टू टर्मिनोलॉजीज, शेयर ऑन एक्स एक्सिस एंड market growth on y-axis. Then comes the other two terminologies which you can see highlighted in red, low and high. अब इसका क्या मतलब? तो मार्केट शेयर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का लो हो सकता है और किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हाई हो सकता है. सिमिलरली गोज फॉर मार्केट ग्रोथ कैन बी लो एज वेल एज हाई.
अब इसको याद रखो कि जब आप प्रोडक्ट को डिटरमाइन करते हो तो आप इन दो चीजों को चेक करते हो. आर दीज द ओनली टू पैरामीटर्स विच आर सपोज टू बी कंसिडर्ड? नो, बट बीसीजी मैट्रिक्स कंसिडर्स ओनली दीज टू पैरामीटर्स. तो हम सिर्फ उस पे फोकस करेंगे, दैट इज मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ. नाउ व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर कंपनी, आपको ये पता होना चाहिए कि उसका फ्यूचर का ग्रोथ की स्कोप कितनी है. उसको चेक करने के लिए, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस को चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बीसीजी मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं. अब सी इनसाइड दिस यू कैन सी 4 different words. Now what are those 4 different words? Question mark, stars, cash cows and dog. Question mark, star, cash cows and dog. ये 4 अलग अलग चीजें हैं. ये 4 अलग अलग क्या है, फिनोमिनाज है, कॉन्सेप्ट है, बेस्ड ऑन द एनालिसिस विच विल बी डन. अब हम बात करते हैं एक एक के इसमें से डिटेल में. Let's say we are starting with the first one, which is known as stars. I always like to either start with stars or start with dogs. So अगर मैंने स्टार्स की बात की तो स्टार्स में देखो वो कहाँ पे आ रहा है, उसका जो मार्केट शेयर है वो भी क्या है, हाई है, एंड मार्केट ग्रोथ भी क्या है, हाई है. सो स्टार्स आर वेयर बोथ द मार्केट शेयर एंड द मार्केट ग्रोथ बोथ इज हाई. दोनों चीज हाई है तो वो कौन से काइंड के प्रोडक्ट होंगे, स्टार, वो स्टार प्रोडक्ट्स होंगे. नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन मार्क. नाउ व्हाट इज क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क मीन्स दैट लो मार्केट शेयर बट हाई मार्केट ग्रोथ. मतलब उसका जो मार्केट शेयर है, करंट मार्केट शेयर, वो क्या है, लो है, बट जो ग्रोथ का फ्यूचर स्कोप दिख रहा है वो क्या है, हाई है. उन प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट्स. क्या बोलते हैं हम, क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट्स. आर पीपल कमिंग सो लेट एंड टिल नाउ? आई विल स्टॉप एडमिटिंग यू पीपल. हाँ, because of you I'll have to go again and again in the lobby and admit करना पड़ रहा है. तो do not enter this late in the meeting. नाउ क्वेश्चन मार्क. तो क्वेश्चन मार्क में क्या हो रहा है, आपका जो मार्केट शेयर है वो लो है और मार्केट ग्रोथ क्या है, हाई है. व्हेन आई से डॉग्स एज अ प्रोडक्ट, तो डॉग्स में दोनों चीज लो है, मार्केट शेयर भी लो है और मार्केट ग्रोथ भी लो है. The cash cows, in this cash cows the market share is high but the market growth is low. The market share is high but the market growth is low. The last Okay, class, sorry for the disturbance. I actually had to mute myself for a minute. So moving ahead, ये आपके 4 कैटेगरीज हैं जिसमें किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या फॉर्म के आप प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट्स इस कंपनी के स्टार्स है, कौन से प्रोडक्ट्स क्वेश्चन मार्क है, डॉग्स है, या फिर कैश काउज है, whatever it is. उस आइडेंटिफिकेशन के लिए आप क्या यूज करोगे, बीसीजी मैट्रिक्स यूज करोगे. Now what does क्वेश्चन मार्क इंडिकेट? क्वेश्चन मार्क इंडिकेट्स दैट जो वो प्रोडक्ट है वो अपने इंट्रोडक्शन स्टेज पे है. व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रोडक्शन स्टेज? हमने कल ही सीखा था कि किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में 4 हो जाता है, आपका बेसिक स्टेप्स 4 होते हैं. एक होता है आपका इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट कम्स ग्रोथ, नेक्स्ट कम्स मैच्योरिटी, द लास्ट इज डिक्लाइन. नहीं सभी पहले रिसेंटली प्रोडक्ट आया है मार्केट में, या तो डाला है रिसेंटली प्रोडक्ट मार्केट में आया, इंट्रोड्यूस हुआ है.
हाँ, रिसेंट प्रोडक्ट अगर कोई मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है, जैसे सपोज मैंने बोला कोई ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, लेट्स से एप्पल। अब एप्पल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। एप्पल ने नया अपना फ़ोन लॉन्च किया, या नए उन्होंने एयरपॉड्स लॉन्च किए सपोज। अब उनके एयरपॉड्स में व्हाट हैपेंस इज, सिंस इट इज़ अ न्यू प्रोडक्ट, उनका मार्केट शेयर क्या है, कम है। मार्केट शेयर मतलब उसका जो ट्रेडिंग हो रहा है या उसमें जो कस्टमर्स इन्वॉल्व है वो कम है, बट उसका जो मार्केट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो हाई है। उसकी जो अभी जो उसका ग्रोथ स्टेज आना है ना, वो आना बाकी है। उसके लोग उनका और स्कोप है फ्यूचर ग्रोथ का। अब वो फ्यूचर ग्रोथ के लिए कंपनीज को क्या देना है, उस प्रोडक्ट पे और फोकस करना है। ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी करंट वैल्यू या करंट मार्केट डिमांड तो कम है, बट क्लियरली दिख रहा है कि इन द फ्यूचर डाउन द लाइन इनका स्कोप ऑफ वैल्यू इंक्रीज होने वाला है। उन प्रोडक्ट्स का अभी कंपनीज क्या करेंगी, जब उनको आइडेंटिफाई किया कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक क्वेश्चन मार्क स्टेज पे है, जिस जो अभी तो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा है मुझे, बट फ्यूचर में ये मुझे हायर प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, उस केस में कंपनीज का पॉइंट ऑफ व्यू या सोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, उनको उस कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। दे नीड टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट और उस प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर एज वेल। एक क्वेश्चन मार्क का जो प्रोडक्ट होगा वो कल को स्टार प्रोडक्ट बन सकता है। नाउ व्हाट इज अ स्टार प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जिसका प्रॉफिट जनरेशन कैपेसिटी भी हाई है और वो मार्केट में करंटली आपको उतना प्रॉफिट जनरेट करके भी दे रहा है, वो आपका ग्रोथ भी हाई है और शेयर भी हाई है। जैसे उसके फोन्स, अब एप्पल के आईफोन्स जो होते हैं, दैट इज समथिंग जो बहुत ज्यादा उसका स्टार प्रोडक्ट है। उसमें उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि वो कितने भी नई सीरीज लाएगा, इट यूजुअली इज डिमांडेड। उसका जो डिमांड है वो तुरंत फुलफिल हो जाता है। सो स्टार प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कंपनी को और मार्केटिंग एफर्ट्स नहीं डालने हैं, वो ऑलरेडी मेच्योरिटी ग्रोथ के उस पे होता है कि काफी उसमें जो कंपनी ने एफर्ट्स डाले हैं, उसके बाद वो जो कंपनी का मेजर इनकम है वो उस प्रोडक्ट से आ रहा है। इन शॉर्ट आई कैन से दैट जो स्टार्स होते हैं ना, वो उसका मेजर इनकम, वो हाईलाइट ऑफ द कंपनी, वो कंपनी का क्या होता है, हाईलाइट ऑफ द प्रोडक्ट, वो कंपनी को मेजर गुडविल क्रिएट करके दे रहा है, मेजर प्रॉफिटेबिलिटी लाके दे रहा है। तो उस हिसाब से वहां पे आपको क्या हो जाता है ना, आपका उन प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं स्टार प्रोडक्ट्स। अब एक क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट को अगर प्रॉपर तरीके से हम एफर्ट्स डालें तो कंपनी उस क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर सकती है, स्टार प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकती है। क्लियर? नाउ व्हाट आर कैश काउज? कैश काउज मतलब है ना, एक एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ये कंपनी के वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो डाउन द लाइन कंटिन्यूस कैश जनरेट करके देते होते हैं। ऐसे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका है ना मार्केट ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, बट वो जो इनकम जनरेट करते हैं वो कंटिन्यूस ट्रेड होते हैं। ये यूजुअली है ना सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स होते हैं। नाउ व्हाट आर सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, जैसे सपोज कोई let me think of an example. See, किसी पर्टिकुलर, हाँ, हमने बात किया चार्जर, आईफोन्स की मैं एग्जांपल ले रही थी, तो लेट्स कंटिन्यू विद द सेम एग्जांपल। अगर फोन्स उसके स्टार प्रोडक्ट है तो उसके जो चार्जर्स हो गए वो उसका क्या है, कैश काउ है कि एनीबडी हैविंग एप्पल आईफोन विल हैव टू डेफिनेटली परचेज अ एप्पल चार्जर। तो इस तरीके से उसको उसकी मार्केटिंग की जरूरत नहीं है और उसका मार्केट में ग्रोथ का स्कोप ज्यादा नहीं है, बट फिर भी वो कंपनी को कैश जनरेट करके दे रहा है। तो लो इन्वेस्टमेंट में वो प्रॉफिट कंपनी को क्या कर सकता है, हाई प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है यूजुअली। अब मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें मैं इसको मैच्योरिटी स्टेज ऐसा नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने बात की एक सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट की, बट अगर मैं नॉर्मल स्टेज में एक सिंगल कंपनी की बात करूं तो कैश काउज मतलब वो अपने मैच्योरिटी स्टेज पे है। वो प्रोडक्ट कौन से है, मैच्योरिटी स्टेज पे है, जहाँ पे वो अब उसमें आपको और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन के बिना भी इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, या इंटरेस्ट पे आपको उस पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंपनी के ग्रोथ को इंक्रीज कर रही है विदाउट मच इन्वेस्टमेंट।
फिर आते हैं हम डॉग्स पे। डॉग्स आर समथिंग जहाँ पे आप बात कर रहे हो ऐसे प्रोडक्ट्स की जो कि अपने या तो वो अपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की एंड पे है, डिक्लाइनिंग स्टेज पे है। डिक्लाइनिंग स्टेज पे है इन द सेंस वो आपको ना उसका मार्केट शेयर हाई है ना उसकी ग्रोथ हाई है। दोनों ही केस में इट इज नॉट जनरेटिंग इनफ प्रॉफिट, नाइदर इज इट जनरेटिंग इनफ, उसका जो ट्रेड हो रहा है वो भी नहीं हो रहा है प्रॉपर। सॉरी, गिव मी अ मिनट। सॉरी, आई विल कंटिन्यू। सो सी, अब अगर मैंने बात की, हाँ हम डॉग्स की बात कर रहे थे, तो एज डॉग्स क्या होता है ना, वहां पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम है, उनका मार्केट शेयर या ग्रोथ भी क्या है, कम है। दे आर कॉस्ट कटिंग। वहां पे आप अगर उन चीजों को आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करनी है तो आप वहां पे कॉस्ट कटिंग का सोच सकते हैं कि उस प्रोडक्ट को और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, क्योंकि एज अ कंपनी अगर आप कॉस्ट कटिंग करोगे तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो सकता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। क्लियर। उसके अलावा अगर मैं बोलूं, अगर सपोज एनी विच वेज कंपनी फील कि नहीं ये प्रोडक्ट में अगर मैंने मॉडिफिकेशन किया भी तो भी फ्यूचर में ग्रोथ का स्कोप नहीं है, तो व्हाट कैन बी डन इज प्रॉपर टाइमली एग्जिट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द वे। प्रॉपर टाइमली एग्जिट लेके भी कंपनीज क्या कर सकती है, उस प्रोडक्ट के साथ डील कर सकती हैं। So there are two ways in which a company can deal with dogs as a part of their product. अब इंडस्ट्री में ये जो कंपनीज होती हैं वो ये एनालिसिस क्यों करेंगी, व्हाई इज दिस एनालिसिस रिक्वायर्ड? अंडरस्टैंड दैट अगर एक पर्टिकुलर कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है बट उसका जो ओवरऑल ग्रोथ होता है, ओवरऑल नेट प्रॉफिट होगा या बैलेंस शीट बनेगी, वो प्रोडक्ट वाइज नहीं बनती है, ओवरऑल बनती है। तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि जो क्वेश्चन मार्क स्टेज पे है, क्या वो उसको स्टार स्टेज पे कन्वर्ट कर सकते हैं? ऐसा करने पे क्या होगा, उनका मार्केट ग्रोथ इंक्रीज हो सकता है। कोई ऐसी कंपनी है जो अननेसेसरीली, ऐसे प्रोडक्ट्स है जो अननेसेसरीली उनके प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो उसको वो डिटोरिएट कर सकते हैं या एग्जिट कर सकते हैं, डी इन्वेस्ट कर सकते हैं उनमें से। या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके वो उसका उस प्रोडक्ट को क्वेश्चन मार्क स्टेज पे या स्टार स्टेज पे ला सकते हैं, जहाँ पे ग्रोथ का स्कोप दिख रहा है, जहाँ पे हाई ग्रोथ की चांसेस दिख रहे हैं। उन केसेस में क्या कर सकते हैं, तो आप कंपनीज अपने प्रोडक्ट को और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकते हैं, उन पर जगह पे वो और पैसे लगा के उन प्रोडक्ट्स के ऊपर और काम कर सकते हैं टू इंक्रीज द ओवरऑल प्रॉफिट। Now, let's take certain examples to study. Now, what kind of examples am I talking about? कि कैसे हम उसको कैश काउ कौन सा है और कैसे उसका आपके प्रोडक्ट कौन सी कंपनीज के हम एनालिसिस के थ्रू इस चीज को कर सकते हैं। सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ आपके फूड प्रोडक्ट्स में किसी का, लेट्स से वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल लेके देखते हैं हम। मैकडोनल्ड्स एज अ कंपनी, उसके क्या कैश काउज है, क्या उसका डॉग है, या फिर हम अमेजोन को स्टडी कर सकते हैं। लेट्स से मैं अमेजोन की बात करती हूँ। अब अमेजोन में जो आपका, हाँ, एक तो आपके अमेजोन आ गए, जो उनके स्टार प्रोडक्ट्स है वो अमेजोन की वेबसाइट है। जो उनका क्वेश्चन मार्क है वो आपके प्राइम, जो आपका अमेजोन प्राइम है, प्राइम वीडियोस आप देखते हैं, वो हो गया, वो उसका क्या है, क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट है। देयर इज दिस अमेजोन का किंडल, वो उसका क्या हो सकता है, कैश का हो सकता है। अमेजोन का एलेक्सा एक ऐप है, एलेक्सा ऑफ अमेजोन, दैट कैन बी द डॉग।
क्योंकि वो अभी उसका ना मार्केट शेयर अच्छा है ना उसका मार्केट ग्रोथ अच्छा है। हम्म, अ, और किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का अगर आपको एग्जांपल लेना है, तो लेट्स से मैं Xiaomi का एग्जांपल लेती हूँ। इफ यू नो, Xiaomi इज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। Xiaomi में हम उसके स्टार प्रोडक्ट्स कौन से हैं, कैश काउस कौन से हैं, क्वेश्चन मार्क्स कौन से और डॉग्स कौन से स्टडी कर सकते हैं। सपोज मैंने बोला उसका स्टार प्रोडक्ट, तो एवरीबडी नोज दैट Xiaomi का स्टार प्रोडक्ट और उसका स्टार स्मार्टफोन्स। जो उसके स्मार्टफोन्स है वो वन ऑफ द टॉप 3 स्मार्टफोन्स है। जैसे आपको काफी चीप प्राइसेस के वजह से या हाई डिमांड इन इमर्जिंग मार्केट्स। व्हाई इमर्जिंग मार्केट्स? बिकॉज अगेन ऑफ द प्राइस। तो उसका जो मार्केट ग्रोथ है वो भी हाई है और उसका जो मार्केट शेयर है, जो परचेजिंग है, वो भी हाई है, लीडिंग टू हाई प्रॉफिट। अगर मैंने बात की कैश काउस की, तो जो आपका MI टीवी है, तो ऑनलाइन टीवी MI टीवी जो है वो कैश काउ प्रोडक्ट है व्हेन आई से ऑफ Xiaomi। नेक्स्ट अगर मैंने बात की उसके डॉग्स की, तो ओवरसीज मार्केट में जब वो ट्रेड करते हैं तो वो उसका डॉग प्रोडक्ट है, मतलब दैट इज नॉट क्वाइट यूजुअली इन डिमांड। अब ये आइडेंटिफाई कैसे होता है और ये इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे कैसे? जैसे मैं तो अभी आपको बता रही हूँ कि ये उसका स्टार प्रोडक्ट है, ये उसका डॉग है, बट आप ये चीज जब एनालिसिस करते हो ना, तो एज एन इन्वेस्टर ये बाहर से करना पॉसिबल नहीं है। ये जो एनालिसिस होगा वो कंपनी का इंटरनल एनालिसिस बेटर है। ये इंडस्ट्री खुद अंदर से एनालिसिस कर सकती है। इट इज नॉट मच ऑन पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कंपनी एनालिसिस के पॉइंट ऑफ, मतलब वो कंपनी खुद अपने डिसीजंस लेने के लिए, खुद अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए ये एनालिसिस बेटर तरीके से कर सकती है। Because there will be some set of information which as an investor will not be accessible to you. Clear? अच्छा, लेट्स डू वन थिंग बिफोर मूविंग अहेड ना। मैंने अगर सपोज सैमसंग की बात की, तो तुम्हारे हिसाब से सैमसंग के स्टार प्रोडक्ट कौन से होंगे? व्हाट इज द स्टार प्रोडक्ट ऑफ सैमसंग? जैसे मैंने Xiaomi का बोला, आप मुझे गेस करके बताओ व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द सैमसंग के कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा हाई डिमांड में है? सैमसंग के फोन्स एस सीरीज में और ए सीरीज में। परफेक्ट। तो जो स्टार प्रोडक्ट है सैमसंग के, दैट वुड बी ये देयर स्मार्टफोन्स। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू के अलावा सैमसंग के कौन से प्रोडक्ट्स है? वॉचेस। वॉचेस। स्टार नाउ प्रोडक्ट में yes। सैमसंग की जो वॉचेस है उसमें क्या होगा ना, हम उसको बोल सकते हैं वो उसका क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट है। क्यों क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट हो सकता है? बिकॉज ऑल्दो द मार्केट शेयर इज देयर, वो अभी तक अपनी मेच्योरिटी पे नहीं पहुंचा है। वो उसका जो ट्रेडिंग है वो उतना ज्यादा हाई नहीं है। उसका जो मार्केट ग्रोथ या जितना उसकी वो अपने फुल पोटेंशियल पे अभी तक इंक्रीज नहीं हुआ है। बिकॉज देर आर मेनी अदर ब्रांड्स ऑफ वॉचेस विच में बीट सैमसंग इन दैट। सो वी कैन से दैट वेरेबल्स जो है उसके सैमसंग के, वो क्या है? क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट है। व्हाट अकॉर्डिंग टू यूज अ कैश काउ? कैश काउ मतलब अब उसकी मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अपने मेच्योरिटी पे पहुंच गया है, ब्रांड और गुडविल ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है सैमसंग का? द ओल्डेस्ट वन अकॉर्डिंग टू मी। टीवीज आते थे सैमसंग के, द टीवीज ऑफ सैमसंग, राइट?
बच्चा आप और कोई प्रोडक्ट बोल रहे थे, सो विल आल्सो लुक इनटू दैट एज वेल. Somebody was speaking, I interrupted. Please continue. No, ma'am. I was a little confused about the product. So हाँ, ओके. सो हम बोल सकते हैं कि जो उसके कैश काउज है वो टीवीज हो सकते हैं. टीवीज क्यों? क्योंकि सैमसंग के टीवीज आर अगेन वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेबल, ऑल्दो देर आर अदर कंपनीज विच में गो फॉर टफ कंपटीशन फॉर सैमसंग. बट देन उसके लिए उसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ टीवीज में बात करेंगे, वो उसका क्या हो सकता है? कैश का हो सकता है, जो उसको कांस्टेंट कैश फ्लो लाके दे सकता है. कैश काउ का सिंपल मतलब होता है जो कंपनी के कांस्टेंट कैश फ्लोज है वो जनरेट करके दे सकता है. व्हाट कैन बी डॉग? चलो डू अ सर्च इफ नीड बी. मेरे को बोलो सैमसंग के डॉग प्रोडक्ट्स कौन से हो सकते हैं? अच्छा, ये सर्च करो सैमसंग के होम अप्लायंसेस आते हैं क्या? टेल मी, टेल मी दिस, सैमसंग के होम अप्लायंसेस आते हैं क्या? You know what home appliances are, right? वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, ये क्या है? आपके होम अप्लायंसेस है. So those can be the dogs of Samsung as a company. वो उसके क्या हो सकते हैं? डॉग प्रोडक्ट हो सकते हैं. क्लास, आर यू लिसनिंग? क्लास, आर यू लिसनिंग? Okay. This BCG matrix basically helps industries to identify and analyze on what uh, products they should work on more, what will be the correct steps for them to increase their profitability. Business decision making में basically, बिजनेस डिसीजन मेकिंग में कंपनी के अंदर कौन से डिसीजंस लेने हैं, नहीं लेने हैं, व्हाट शुड बी देयर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, उन चीज़ों को डिटरमाइन करने में ये बीसीजी मैट्रिक्स क्या करता है? हेल्प करता है. इट वाज एज आई सेड डेवलप्ड बाय द कंपनी नोन एज बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप. ओके. उस बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था एंड सॉरी उस मैट्रिक्स को सजेस्ट किया था. इस मैट्रिक्स में उन्होंने, ये एक टूल है जो कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ और उसको स्टडी करने में हेल्प कर सकता है कि करेक्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए. With this, we are done with three kind of analysis. The first one was pestle analysis. The next one was 5-force model analysis. The third is BCG matrix analysis. Okay, I won't end the lecture today now. हम आगे और भी continue करने वाले हैं. What I want is आप लोग 5-10 मिनट का break ले लो. After 5-10 minutes, I'll start the lecture again. But do not leave the meeting because I won't wait for you to join it again. So after 5-10 minutes, I'll start again. Okay.
Class, is the new photo of the visible? Yes, miss. Okay, great. Um so now this is another model. After the third model, this is the fourth one, where we are studying the structure, conduct, performance model, that is known as SCP model. Again, what is the name of the model? SCP model, that is structure, conduct, and performance. Now, what is this model? Who gave this model, the derivation and everything? Understand that this model was used for industry analysis. You can say it is an extension of the five forces model. In five forces model also, what you did was you studied the different factors determining the company's competitiveness or company's uh, वर्किंग, उसके प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करने वाले जितने भी फैक्टर्स थे उसको आपने स्टडी करने की कोशिश की. यहाँ पे भी आप कुछ उसी तरीके से इंडस्ट्री के एनालिसिस को समझने की कोशिश करेंगे. नाउ दिस इंडस्ट्री एनालिसिस और द SCP एनालिसिस, whom was it given by? So this was developed by Joyce Brain Jr. Joe Bain, Bain Bain. So Joe Bain Jr. in 1959, that is in 1960s, it was influenced. That was made. 1959 में ये SCP conduct बनाया था. It was helped to study or analyze what एक इंडस्ट्री का सेक्टर, एक ये एक फ्रेमवर्क है. फ्रेमवर्क क्या होता है? डिजाइन काइंड ऑफ अ थिंग. दिस इज अ फ्रेमवर्क विद इन एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन. इस इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का एक फ्रेमवर्क डिजाइन करने में हेल्प करता है. इन विच व्हाट यू स्टडी इज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर, कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस. नाउ कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा कंडक्ट और किसका परफॉर्मेंस? सो ओवर हियर आप जब स्ट्रक्चर बोलते हो तो अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर इज मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट कंडक्ट एंड मार्केट परफॉर्मेंस. मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का कंडक्ट या मार्केट का परफॉर्मेंस. Otherwise, I can also state it as industry structure, industry ka conduct, and industry ka performance. In the relationship between these three can be studied using what? It can be studied using this SCP model. Now, what this model states? The basic statement of this model is that there is a strong relationship between this. Now, what is the relationship? It states that the industry performance is shaped by industry's conduct. इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस कैसा होगा, दैट इज द रिजल्ट. अब ये रिजल्ट बहुत सारे तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं. तो उसका रिजल्ट किसके वजह से शेप होता है? इट इज शेप्ड बाय आपका फर्म्स कंडक्ट. द परफॉर्मेंस इज व्हाट? शेप्ड बाय फर्म्स कंडक्ट. और फर्म का कंडक्ट, फर्म क्या करेगा क्या नहीं करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म. So the performance is shaped by the firm's conduct, and the firm's conduct depends on what? The structure of the market. So this kind of relationship is studied using what? SCP. The fundamental over years are very different. आप एक कंपनी के पहले एक मार्केट के स्ट्रक्चर को स्टडी करोगे कि वो कौन से काइंड ऑफ स्ट्रक्चर या कौन से काइंड ऑफ मार्केट में काम कर रहा है. उसके बाद आप देखोगे कि उसमें कंडक्ट या उसकी पॉलिसीज क्या है. उस कंडक्ट को स्टडी करने के बाद आपको पता चलेगा कंडक्ट ओवर हियर मींस एक्शंस. क्या क्या कंपनी के एक्शंस क्या है, उस एक्शंस पे, उस कंडक्ट पे उसका क्या डिपेंड करेगा? परफॉर्मेंस या एज वी से प्रॉफिट. क्लियर? नाउ सी विल जस्ट गो थ्रू द हेड पॉइंट्स. मैं पहले सिर्फ हेड पॉइंट्स रीड कर देती हूँ तीनों के, उसके बाद हम इन डिटेल सब कुछ स्टडी करेंगे. जब मैं वर्ड यूज कर रही हूँ मार्केट स्ट्रक्चर, उसमें हम क्या क्या बात कर रहे हैं? तो हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं, मार्केट में लोगों का बिहेवियर. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, व्हाट काइंड ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर देयर, व्हाट इज देयर साइज एंड ऑल. कंडीशंस ऑफ एंट्री एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. When I say conduct of their firm,
मार्केट के स्ट्रक्चर के बाद है फर्म्स कंडक्ट। इन फर्म्स कंडक्ट इट कम्स उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या है, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज क्या है, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज कैसे है, हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज सपोज टू बी डन एंड व्हाट आर देयर इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स, जो सबसे पहला परफॉर्मेंस चेक करने का जो आपका पैरामीटर होता है वो होता है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी। तो आप फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करोगे, उसके साथ साथ आप चेक करोगे कि उसमें कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज या एडवांसमेंट, बिकॉज मेनी अ टाइम्स अच्छे कंडक्ट से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ सकता है जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट जनरेट करेगा। देन अलोकेटिव एफिशिएंसी, these are certain things which helps us to study the परफॉर्मेंस। आपको परफॉर्मेंस चेक तो करना है, बट चेक करने के लिए कौन से वेरिएबल्स को चेक करोगे, तो आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर सकते हो, एफिशिएंसी चेक कर सकते हो एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज चेक कर सकते हो। इन तरीके से आप एक प्रॉपर रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो बिटवीन कंपनीज, ऑल द थ्री फैक्टर्स और पैरामीटर्स। Now when I say structure analysis, industry structures encompasses of what, क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें। तो in an industry the structure can include what, it can include factors such as number of players, कितने players है उसमें, कौन से parties involved है, because it is very important। आपको जितनी ज्यादा parties होंगी उतनी ज्यादा वो affect करेगा आपके decision making को। तो are there many suppliers, are there many promoters, फिर are there many, suppose your business is something where you take spare parts from many spare parts from many companies, तो वो सारे आपके प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से एन एग्जांपल, अच्छा ठीक है मैं एग्जांपल्स बाद में लेती हूँ। अगर मैंने बोला पहले ही मैंने बात कर ली नंबर ऑफ प्लेयर्स, या जो आपके कितने प्लेयर्स है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर में। Suppose the automobile industry. Now, as you know, almost many of the automobile industries work in such way that उनके spare parts अलग-अलग जगह से बन के आते हैं और फिर वो सिर्फ assembling का काम करते हैं। The spare parts are made elsewhere. When you talk about electronic gadgets as well, उनका chip कहीं और बनता है, motherboard कहीं और बनता है, memory card कहीं और बनता है, और उसके बाद जो मेन कंपनीज होती है वो यूजुअली असेंबलिंग का या बॉडी बनाने का अलग अलग जो काम करते हैं। तो ये जो कंपनीज होती है उसमें जो नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं इन द इंडस्ट्रीज कैन बी हाई। ऑल्सो इट कैन बी सच दैट, एक दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या आपकी मोनोपोली है या बहुत सारे लोग हैं जो कि सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट को आप इस तरीके से भी स्टडी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री में भी, कि आपके जो आप जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं उसके क्या एन नंबर ऑफ प्लेयर्स है, क्या उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऑफर करने वाली और भी फर्म्स है। सो दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्लेयर्स। Are they dominated by certain big players? Suppose if you are working in a particular industry, तो क्या वहाँ पे particular players का dominance है कि वही rule करते हैं proper structure of the market? Now, what happens if there is a dominance? If there is a dominance, आप company का growth structure क्या हो सकता है, रुक सकता है। What if there are threats of substitute products? अगर बहुत सारे वो है आपके पास, the structure is such that there are multiple sellers of the same product. In that case, there is a high chance of substitution of the product. तो वो एक केस आप ध्यान दे सकते हो कि थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। फिर अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, बिकॉज जब भी थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात आएगी, सब्स्टिट्यूशन मतलब आपके प्रोडक्ट को इजीली कोई दूसरा प्रोडक्ट रिप्लेस कर सकता है, तो जब भी ऐसे की प्रॉब्लम रेज होती है तो द सॉल्यूशन टू दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। द प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द कंपनीज is same, but the qualities or the features of this product is different. वो जो आपको features provide कर रहा है वो अलग होगा, तो that makes a company a different
और यूनिक फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स, तो उस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे काम करना पड़ेगा कि आपका इंडस्ट्री बेसिकली प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे ही वर्क कर रहा है. नाउ एज यू नो, इन नॉर्मल इकोनॉमी ऑलमोस्ट ऑल द मार्केट्स वर्क with perfect or imperfect competition. There is no monopoly as such. Monopoly नहीं है कहीं पे भी, सारे जगह पे competitions है ही. तो threat of substitution is very common and even product differentiation is very common. There are hardly any industries where monopoly exists. तो वहां पे आपको थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं है, वहां पे जो स्ट्रक्चर है वो अलग है. बाकी सारे केसेस में, नॉर्मल केसेस में जो स्ट्रक्चर है वो यही होता है कि देयर विल ऑलवेज बी अ हाई थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन्वॉल्व में बी हाई, और अगर प्लेयर्स इन्वॉल्व हाई है तो ये हो सकता है सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम. अगर प्लेयर्स कम है तो डोमिनेंस का प्रॉब्लम हो सकता है. सो whenever you are talking about investing और इंडस्ट्री एनालिसिस, आप सबसे पहले ये चेक करोगे कि वहां पे क्या डोमिनेंस का प्रॉब्लम है या वहां पे थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है. सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हो. यू कैन डेवलप द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री कि व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्री वी आर इज द पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट. अगर आप एज एन इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव बात करो तो आप रिसर्च क्या करोगे कि उस इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है. क्या वो मोनो डोमिनेंस बेस्ड इंडस्ट्री है, क्या वो मल्टीपल मार्केट्स वाली इंडस्ट्री है. दैट विल हेल्प यू टू फर्दर एनालाइज द थिंग्स. एक बार आपके पास, once you are done with first step, and what is the first step? To do proper structure analysis of the industry. Once the analysis of the structure is done, then comes the next part, which is known as conduct analysis. Now what is conduct analysis? In this conduct analysis, आपका जो ऊपर का analysis है ना, वो बहुत important role play करता है, because the above information will help companies to determine their course of action, कि उनको किस तरीके से अपने products को, अपनी pricing strategies, अपनी advertisement strategies को क्या करना पड़ेगा, operate करना पड़ेगा. Understand? Let's understand with examples of each of the following. Suppose मैंने बोला, see there are certain businesses which are seasonal. तो उनका क्या होता है ना, जो उनकी strategies होंगी, उनका जो structure है, that will be different from structures जो overall चलते हैं. अब मैं अगर seasonals की बात करूँ तो बहुत basic example है आपका umbrellas और raincoats. सो कंटिन्यूइंग, अगर मैंने आपकी बात की सीजनल जो स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जिस इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर सीजनल है उनका जो कंडक्ट होगा वो डिफरेंट होगा. आप कौन सी इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर सीजनल हो सकता है? माइट बी अम्ब्रेलास, रेनकोट्स, ये स्ट्रक्चरल सीजनल बेस्ड है, तो उन कंपनीज का जो कंडक्ट होगा वो अलग होगा. बट अगर मैंने बात की FMCG goods, now fast moving consumer goods like your clothes और या फिर आपके clothing, food products, ये सब जो goods होते हैं जो फटाफट consumable होते हैं, during the year, throughout the year चलते हैं, उनका जो structure है वो अलग है. तो उन companies की जो pricing decision होंगी, उन companies की जो profit advertisement decisions होंगी वो अलग होंगे. तो इस तरीके से सपोज कोई ऐसी कंपनीज है जो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, जो उनका जो यूजुअली क्रेडिट बेसिस होती है, जैसे कंपनीज विच आर ऑफ हाई परचेज, जैसे मैंने बोला ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गई, इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी इंडस्ट्रीज हो गई, उसमें क्या होता है ना, इट इज अ 24 आवर, बट उसका स्ट्रक्चर होता है कि द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज हाई. तो इफ द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज हाई, वहां पे इंटरेस्ट रेट कितना है, वो EMI पे देंगे तो कौन सी EMI पे देंगे, इन सब चीजों को भी क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है. तो उधर स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है. सो आप जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो स्टडिंग द स्ट्रक्चर हेल्प्स द इंडस्ट्री टू डिसाइड देयर कोर्स ऑफ कंडक्ट, कि वो इन सब चीजों पे कैसे काम करेंगे. Suppose once the structure analysis is done, what will the company do in conduct analysis? Let's take an example. हम बात करते हैं सबसे पहले pricing की. तो pricing strategies determine होंगी. If it is a high competition market, the pricing cannot vary much, क्योंकि suppose अगर market में competition ज़्यादा है, number of players high है, आपने किसी एक particular अपने product का price बहुत ज़्यादा high कर दिया है, तो लोग क्या करेंगे, उसके cheaper
सब्स्टिट्यूट्स पे जाने की कोशिश करेंगे जो आपके मार्केट के लिए एक लॉस मेकिंग डिसीजन हो सकता है। तो आप मार्केट डिमांड के हिसाब से मार्केट को कंसिडर करके अपने प्राइसेस को चार्ज कर सकते हैं। बट व्हाट इफ यू आर अ डोमिनेंट ब्रांड, व्हाट इफ यू आर अ डोमिनेंट ब्रांड, तो आपको क्या मार्केट डिमांड के साथ चेक करने की जरूरत है? नहीं, बिकॉज एनी प्राइस सजेस्टेड बाय हाई ब्रांड्स और लग्जरी ब्रांड्स इज जस्टिफाइबल बिकॉज ऑफ कस्टमर लॉयल्टी एंड अगेन बिकॉज ऑफ द क्वालिटी विच दे आर ऑफरिंग। तो इस तरीके से अगर आपके प्रोडक्ट में यूनिकनेस है तो आप हाई प्राइसेस चार्ज कर सकते हो। बट अगर आपके प्रोडक्ट में यूनिकनेस नहीं है, इट इज सम माइनर डिफरेंसेस, तो आपको मार्केट डिमांड के हिसाब से प्राइसिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। ये हो गया फर्म का कंडक्ट, जो डिपेंड किस पे करता है? इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अनदर एग्जाम्पल वी कैन से उनकी जो एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजीज होंगी वो कौन से टाइप के कस्टमर्स को केटर करेंगे, वो भी डिपेंड करता है ऑन द स्ट्रक्चर, कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो स्किल बेस्ड या स्पेशलाइज्ड बेस्ड है क्या। तो उस हिसाब से वो अपनी उस स्पेशल क्वालिटी को क्या करेंगे? टारगेट करेंगे टू क्रिएट अ प्रॉपर कंडक्ट। सपोज कंज्यूमर्स के प्रेफरेंस के हिसाब से वो एनालिसिस करेंगे और उस हिसाब से प्रोडक्ट को एडवर्टीज करेंगे। क्या उसका कंडक्ट, अब मैंने अगर कंडक्ट की बात की तो क्या कंपनी का दूसरा एक एस्पेक्ट हो सकता है, क्या कंपनी का कंडक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस पे ज्यादा बेस्ड है? जैसे देयर आर इंडस्ट्रीज इन विच यू कैन से, जो आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है। अब इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में देयर आर वेरियस लाइसेंसिंग प्रोसेसेस विच वन हैज टू अंडरगो। सो उसका जो कंडक्ट है वो उस चीज पे भी डिपेंड कर सकता है। कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है। नाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर 2-3 थिंग्स: improvement in the ongoing business and introduction of new business। कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 2 पॉइंट पे काम करती है। कौन से 2 पॉइंट पे काम करती है? पहला होता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, दूसरा इन्वेस्टमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। ये कोर्स ऑफ कंडक्ट, ये कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। तो कंपनी का R&D कैसा है ये भी आप स्टडी करेंगे, क्योंकि दैट विल डिटरमाइन कि कंपनी का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कैसा है। देयर इज ऑल्सो सी आपके अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड टैलेंट। आप किसी पर्टिकुलर, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट हैंडलूम फैब्रिक्स और हैंडलूम प्रिंट्स, जहाँ पे प्रॉपर स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, क्या वो उस स्किल सेट की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, वो भी डिपेंड करता है। तो वहाँ पे भी आपका कंडक्ट क्या हो सकता है? चेंजेस आ सकते हैं कंडक्ट ऑफ द कंपनी, कि उसका जो एक्शंस है उसमें डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, कंट्री का द कंपनीज कंडक्ट में इन्वेस्टमेंट क्या है, उसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज क्या है, वो भी आप स्टडी कर सकते हैं व्हाइल डूइंग एनालिसिस। अब इंफॉर्मेशन जनरेट करना, इंफॉर्मेशन ढूंढना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं बोल रही हूँ आप इन चीज़ों को स्टडी करेंगे, तो इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ करेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू गेन अबाउट। तो बिकॉज फॉर एनी एनालिसिस द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट। जब तक आपका डेटा कलेक्शन नहीं होगा एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आप कंपनी के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। कंपनी के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद हम स्टडी करते हैं कंपनी का कंडक्ट या इंडस्ट्री का कंडक्ट, कि व्हाट कोर्स ऑफ एक्शंस दे आर टेकिंग। ऑफ कोर्स एज आई सिंपली स्टेटेड कि ये जो कोर्स ऑफ एक्शन किस पे डिपेंड करता है, उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। व्हाट इफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, सपोज कल को स्ट्रक्चर में आप जिस कंपनी, आप वॉट एवर इंडस्ट्री यू आर वर्किंग इन दैट इंडस्ट्री देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ सर्टन न्यू टेक्नोलॉजी, इज योर कंपनी एबल टू अडॉप्ट टू दैट टेक्नोलॉजी? एप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं, वो इंडस्ट्री के डायनामिक्स को चेंज कर सकता है। जो इंडस्ट्री या जो फर्म उसको ज्यादा इजीली अडॉप्ट कर पाएगी उसका कंडक्ट बेटर हो जाएगा। देयर आर मल्टी फेस अप्रोच। इसमें क्या होता है ना, आप अलग अलग तरीके से
these what this helps, ये जनी जितनी भी मैंने चीजें बोली कि आप कंपनी की प्राइसिंग चेक करोगे, आप उसकी एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजीज का चेक करना, या R&D चेक करना, या उसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को चेक करना, इन सब चीजों से हेल्प क्या मिलेगी? इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट व्हाट द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कि वो बिजनेस का कंडक्ट कैसा है, उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है, वो किन चीजों से अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्या उसके कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है जिससे वो मार्केट में कल को होल्ड करके रख सकता है अपने ग्रोथ को, whatever growth it is going through, क्या उस ग्रोथ को होल्ड करने के पास उसके खुद के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है या नहीं है, दैट इज कंडक्ट एनालिसिस. So we are done with structure and conduct. The next is performance. But before starting with performance, tell me, is both the things, are both of these two first clear? फिर मैं आगे मूव करूं. क्लास, क्या आपको स्ट्रक्चर और कंडक्ट समझा? आपको ऐसा लग रहा होगा आई एम ओवरलैपिंग थिंग्स, बट अंडरस्टैंड दिस, आई एम नॉट ओवरलैपिंग थिंग्स. जैसे क्या होता है ना, आप एक ही चीज सीख रहे हो. व्हाट आर यू लर्निंग? यू आर लर्निंग इंडस्ट्री एनालिसिस. इंडस्ट्री एनालिसिस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. जैसे कि हमने सीखा पेस्टल एनालिसिस है, जैसे कि हमने सीखा आपका BCG मैट्रिक्स है, या फिर आपका जो हमने 5 फोर्स मॉडल सीखा, या अभी हम SCP मॉडल सीख रहे हैं. व्हाट यू आर डूइंग इट इज द सेम थिंग. आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, उसका मार्केट स्ट्रक्चर और ये सब स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो टू डिटरमाइन विच इंडस्ट्री विल बी एबल टू विथस्टैंड द कंपटीशन एंड इन फ्यूचर प्रोवाइड हायर ग्रोथ. The aim of industry analysis is the same. The factors in general affecting those industries will be same. What is different is the approach for doing that analysis. हर चीज में, हर मेथड में वो करने का अप्रोच बदल रहा है. The way you will be studying that factor is changing. अब एज अ इन्वेस्टर और एज अ कंपनी क्या आप सारे एनालिसिस करोगे अपनी कंपनी के लिए? ऑफ कोर्स नॉट. आप इसमें से वॉट एवर यू फील इज सुटेबल फॉर योर एनालिसिस, यू विल सिलेक्ट दोज मेथड्स एंड यू विल अप्लाई दैट मेथड फॉर इंडस्ट्री एनालिसिस. बट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि मेरी कंपनी के लिए कौन सा अच्छा होगा, मुझे नॉलेज तो सबका चाहिए. तो दिस इज द रीजन वी आर लर्निंग ऑल दिस टेक्निक्स. अंडरस्टूड? So it is not that I am overlapping topics, it is that you are learning to do the same thing in different ways. Are you understanding, class, what I'm telling? Okay. So in SCP model, uh, over here, the last part is left, which is known as the performance part. Performance is nothing but the outcome. ऑफ कोर्स आपने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, आपने उसकी यूनिकनेस स्टडी कर ली, उसका कंपनी कैसे काम करती है, उसका डिसीजन मेकिंग पढ़ लिया, उसके इवेंट्स पढ़ लिए, बट आपने यही नहीं देखा कि आउटकम क्या है. तो व्हाट इज द यूज? सो अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो क्या होगा? आउटकम ऑफ द, और दैट इज आउटकम एनालिसिस या परफॉर्मेंस एनालिसिस. Before I start this, just give me a minute. Give me a minute. I'll start again. Just give me a minute. There's something I need to do. Just give me a minute.
Thank you for waiting, class. We'll continue. Okay, so we were talking about performance analysis. Now, understand that the information which is derived from the structure and the conduct of the industry will help to understand the financial outcomes of for the investors or the owners. जो आपने इंफॉर्मेशन या एनालिसिस किया है अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड द कंडक्ट, उन स्ट्रक्चर और कंडक्ट को पढ़ के आपको आपको आउटकम जनरेशन का एनालिसिस करना होता है, विच इज एन प्रॉफिट फॉर इन्वेस्टर्स एंड ओनर्स. Now business that yield high returns on capital, जो बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल इज हाई, या जिनका इक्विटीज बहुत लॉन्ग टर्म वेल्थ शेयर होल्डर्स को क्रिएट करके दे रहा है, जिनका इक्विटी मतलब मार्केट गेन, कैपिटल गेन या मार्केट कैप बहुत अच्छा है, ये उनको क्या करता है, अच्छे से आप उसको स्टडी कर सकते हैं. इन द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग दिस, आप इन सारी यूनिट को क्या करोगे, कवर करोगे. यू विल स्टडी ऑल दिस कि उसका ग्रोथ कितना है, स्ट्रक्चर कैसा है. सी द हेड पॉइंट्स विच आर स्टेटेड, क्या क्या लिखा है. आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर रहे हो, आप उसकी अलोकेटिव एफिशिएंसी चेक कर रहे हो, या टेक्नोलॉजिकल चेंज की बात करते हैं. अब सपोज आप जिस इंडस्ट्री सेक्टर की बात कर रहे हैं दैट इज ऑलरेडी लिस्टेड, तो अगर वो ऑलरेडी लिस्टेड है तो आप उसके प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के सोर्सेस क्या है. यू कैन फर्स्ट थिंग विच यू कैन गो इज, अच्छा आप बोलो मुझे, यू टेल मी व्हाट डू यू थिंक, प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए आपके पास सबसे ओपन और इजीली अवेलेबल सोर्स क्या है किसी भी इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए. टेल मी क्लास, कैसे चेक कर सकते हो. How can you check profitability of a particular industry? Come on, there are students of TY here. Ma'am, can you repeat? The voice was. How can you check the profitability of an industry? What is the source you will depend upon to check that profitability? Maybe balance sheet. थ्रू द बैलेंस शीट. परफेक्ट. आप चेक करोगे कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशंस कैसी है. व्हेन आई से फाइनेंशियल पोजीशंस, आप बैलेंस शीट में से उस इंडस्ट्रीज का नेट टर्नओवर चेक कर सकते हैं. यू कैन चेक व्हाट इज द प्रॉफिट मेकिंग, या जो आपका अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो देयर आर वेरियस फंडामेंटल्स विच यू स्टडी, जैसे कि उसका पी रेशियो हो सकता है, या आप बात कर सकते हैं कि उनका रिटर्न ऑन असेट रेशियो कितना है, उनका प्रॉफिट कॉस्ट मार्जिन, मतलब प्रॉफिट कॉस्ट मार्जिन इन द सेंस व्हाट इज द प्रॉफिट मार्जिन, अगर उनके कॉस्ट का कंपेयर करेंगे तो व्हाट इज द प्रॉफिट मार्जिन दे आर मेकिंग ऑन पर प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट क्वालिटी. मेनी टाइम्स द प्रॉफिटेबिलिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी, कि प्रोडक्ट क्वालिटी और इनोवेशन कैसा है. ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन, सपोज इट इज एन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, तो आप उसके प्रीवियस एनुअल रिटर्न्स चेक कर सकते हैं उस इंडस्ट्री के. उस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, ओवर ईयर यू कैन स्टडी द परफॉर्मेंस. अब ये चीजें तभी अच्छी होंगी जब ऊपर के सारे स्ट्रक्चर्स और उसमें आपको पॉजिटिव इफेक्ट दिखा होगा. अदरवाइज उसका परफॉर्मेंस हमेशा क्या होगा, खराब होगा. अगर स्ट्रक्चर या कंडक्ट अच्छे से डिजाइन नहीं होगा, या फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपने कंडक्ट में चेंजेस नहीं लाएंगे, तो आपके परफॉर्मेंस कभी भी अप टू द मार्क नहीं होगा. सो फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, एज वन ऑफ द स्टूडेंट सेड, कि आप उसका बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर सकते हैं, आप उसकी टर्नओवर चेक कर सकते हैं, आप उसकी प्रोडक्टिविटी चेक कर सकते हैं कि वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, आप उसके पास्ट ग्रोथ और रिटर्न्स चेक कर सकते हैं. This way what you do is आप SCP पैराडिग्राम से
you can do industry analysis. You can study the structure, then conduct, and then the performance. In this, you will be able to identify which industry is performing well or which industry is showing growth in the current market scenarios. After that, once you understand or you have decided the industry, you can always go to decide which firm in that particular industry. जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि when I say the word industry analysis, I'm not talking about particular firm, I'm talking about industry as a whole sector. तो उस पर्टिकुलर सेक्टर में फिर आप फॉर्म डिसाइड करोगे, बट पहले तो आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज को ही यहाँ पर में कंपेयर करना होता है और कंपेयर करके ये डिसीजन लेना होता है कि विच इंडस्ट्री इज प्रॉफिट मेकिंग इन द करंट सिनेरियो, कौन सी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, कंडक्ट कैसा है, उनके परफॉर्मेंस का आउटकम कैसा है, उन चीजों को स्टडी करना ही इज नथिंग बट इंडस्ट्री एनालिसिस. When I was explaining, I took example of different industries or sectors. अब हर इंडस्ट्री के लिए हर इंडस्ट्रियल एनालिसिस टेक्निक कैन नॉट बी अ राइट टेक्निक. The technique supposed to be used can differ on the type of industry you are selecting. अगर fewer buyers है, monopoly है, तो उसकी strategy analysis अलग तरीके से होनी चाहिए. Clear? Is it clear, class? Reply, react, something. See what happens when you have a proper industry analysis with you, you will be able to make informed decisions. Informed decisions are always better than believing on blind intuitions. I understand that जब आप यहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट ऐसे सीख रहे हो, फंडामेंटल एनालिसिस में आपके फैक्ट्स क्लियर होना, उन फैक्ट्स पे ही डिसीजन मेकिंग करना इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग एज अ रिसर्च एनालिस्ट. तो इसीलिए इंडस्ट्री एनालिसिस अगर आप बात करते हैं वहां पे इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू नो हाउ ऑल दीज टेक्निक्स वर्क. When I say your syllabus, आपके यूनिट 4 का जो पार्ट है उसमें 4-5 चीजें ही इंक्लूडेड है. फर्स्ट वन वाज योर डॉक्टर्स का मॉडल, 5 R's मॉडल, द सेकंड वाज पेस्टल, द थर्ड वाज बीसीजी एंड द लास्ट वाज एससीपी एनालिसिस. एससीपी एनालिसिस आपका लास्ट था. इसके बाद भी ऑफ कोर्स देयर इज सिलेबस लेफ्ट, बट जो टेक्निक्स थे उन टेक्निक्स में ये 4 इंक्लूडेड थे. उन चारों को हमने आज कंप्लीट किया हुआ है. किसी को इन चारों में से डाउट है? इज देयर एनी डाउट? Come on, tell me, is there any doubt? No? Okay, if there is no doubt, I will add on something for you people. See, जब मैंने SCP आपको सिखाया ना, तो SCP कंडक्ट में हमने क्या बोला कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, कंडक्ट को डिटरमाइन करता है, और कंडक्ट किसको डिटरमाइन करता है, परफॉर्मेंस को. ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच था. अब हम ऐसा भी बोलते हैं ना, कंपनी के कंडक्ट से स्ट्रक्चर में चेंज आ सकता है, या सॉरी इंडस्ट्री के कंडक्ट से, इंडस्ट्री की चेंज ऑफ एक्शन से देयर कैन बी आल्सो चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, या फिर आपके परफॉर्मेंस में कंटिन्यूस चेंज इन परफॉर्मेंस कैन चेंज इनटू द स्ट्रक्चर. तो इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग अ लीनियर रिलेशनशिप, व्हाट वी से इज नाउ देयर कैन आल्सो बी आपका
इंटर रिलेशनशिप, आपके एक जो चीजें है वो एक दूसरे पे भी डिपेंडेंट हो सकती हैं. आपका स्ट्रक्चर, कंडक्ट, परफॉर्मेंस एज ए सोर्स ऑफ मॉडल. फर्स्ट वी यूज्ड टू से कि वो तीनों आपस में ऐसे एज ए लीनियर रिलेशन है कि स्ट्रक्चर कंडक्ट डिसाइड करेगा, कंडक्ट परफॉर्मेंस डिसाइड करेगा. अब हम बोलते हैं देयर कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप एज वेल, जहाँ पे आपका परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म गुड परफॉर्मेंस कैन चेंज द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. वो कंटिन्यूस प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तो कल को वो अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, बिकॉज उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गया. इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब आपको मैंने लास्ट लेक्चर भी समझाया था, जहाँ पे आप कम से कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन क्रिएट कर पाते हो. बिकॉज ऑफ हाई प्रोडक्शन, आपका प्रोडक्शन जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाता है तो आपको प्राइस बेनिफिट मिल सकता है. तो इस तरीके से आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट हो सकता है. या आपके कंडक्ट में, अपने R&D में कोई नया ऐसा इन्वेंशन या इनोवेशन प्रोजेक्ट क्रिएट किया जिसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया. तो इस तरीके से आपके जो ऑल्सो देर आर सप्लायर्स एंड डिमांड्स. देन जो आपके सप्लायर, जो हमने 5 फोर्स में सीखा था कि आपका जो बायर्स पावर और कंज्यूमर्स पावर होता है, वो अगर बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर स्ट्रक्चर में चेंज ला रहा है तो भी आपका कंडक्ट या परफॉर्मेंस क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है. आपके पॉलिटिकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर में जब हम स्टडी करते हैं तो इवन पॉलिटिकल गवर्नेंस, मैंने बोला लाइसेंसिंग का प्रोसेस है, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है, तो इवन दैट कैन चेंज. व्हाट इफ गवर्नमेंट चेंजेस द एग्जिट एंड एंट्री पॉलिसी. जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज में एंट्री के लिए लाइसेंसिंग चाहिए होता है, कल को वो लाइसेंसिंग नहीं है. देयर आर वेरियस इंडस्ट्रीज विच आर पब्लिक गवर्नमेंट ओन्ड है, जैसे कि आपकी रेलवेज हो गई. रेलवेज अभी भी प्राइवेटाइज्ड नहीं हुआ, कल को अगर रेलवेज प्राइवेटाइज्ड हो गया तो वो इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट देयर इज ओनली अ सिंगल लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन आपका स्ट्रक्चर, कंडक्ट एंड performance, now in the modern world the industry analysis can be done in such a way that there is a long term रिलेशनशिप बिटवीन दीज, और वो भी इंटर रिलेशनशिप. शॉर्ट टर्म में तो आपका ऐसे ही होगा कि स्ट्रेट लीनियर रिलेशनशिप है, बट अगर मैंने लॉन्ग टर्म में बात की तो दोज आर इंटर डिपेंडेंट अमॉन्ग ईच अदर्स. वो जो आपके एनालिसिस है या जो पैरामीटर्स है स्ट्रक्चर, कंडक्ट और परफॉर्मेंसेस को स्टडी करने के, वो क्या हो जाते हैं, इंटर डिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे पे. क्लियर? Is it clear, class? Okay. So now I'll end the meeting. You are allowed to leave if need be. Have a good day ahead. Bye. Thank you, Miss.